Hello and welcome to the SimCat 5 VARC analysis. Now, what I intend to do is through these sessions, okay, this is the first one. I will do analysis for all the leading mocks, only the VARC section. So, इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको एक रीजनिंग बताता हूँ मेरी क्या है कि जो लीडिंग मॉक्स अवेलेबल हैं उनके जो VARC सेक्शन है, so over a period of time I have analyzed and I found that they do not really represent the actual CAT VARC. They don't. Whether it is A institute, B institute, or C institute. Now, students, when they prepare, so they kind of start looking at CAT through the lens of these mocks and they become hugely underconfident. ऐसा बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो दे डोंट मेक हेड और टेल ऑफ दीज काइंड ऑफ mocks and then they get very depressed. So through these sessions, what I try to do is look at each and every passage, each and every question, each and every option, and see. One is the difficulty level, whether the level of difficulty of this particular mock was matching with CAT. Because contrary to the perception, CAT exam ऐसी नहीं है जो uniformly difficult होती. The responsibility of a paper setter here is to give you questions which are easy, moderate, and difficult, but they should be interspersed or mixed well within each other so that the skill of the student identifying the easy ones comes into fore. तो आप कोई भी स्लॉट पिछले वैसे 2017 से लेके 2025 तक के पेपर्स डोमेन में अवेलेबल पब्लिक डोमेन में, आप if one wants to do that, they can go and look at each of those and they will find एक कॉमन पैटर्न जो कैट वीआरसी का है कि उसमें दो पैसेज जो होते हैं, एक इजी होता है, एक इजी टू मॉडरेट, राइट? सो दो इजी और इजी टू मॉडरेट में हो गए, एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट और एक डिफिकल्ट. दिस काइंड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. मे बी देर कुड बी वन एक्सेप्शन. अभी इतने सारे स्लॉट्स हो गए हैं, सो मे बी देर कुड बी वन एक्सेप्शन जहाँ दो डिफिकल्ट आ गए हैं, बट उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते. दो से ज्यादा डिफिकल्ट आई नॉट सीन in any slot, any set of CAT VRC. So what I'm trying to hint at is that when we look at these mocks, okay, what I find is they make it uh, unnecessarily hard. Now, hard or difficult does not mean just the kind of passages that they bring, but also the logic behind each and every question and selecting the option. ये जो पैसेजेस हैं ये किसी ना किसी आर्टिकल से या किसी ना किसी बुक से या कहीं जर्नल से लेके आते हैं. Now, the person who's setting the paper has got the benefit of reading the whole article. But sometimes the person looks or infers too much from this, जो कि आप as a person who's attempting it may not be privy or you don't have access to that. Right? You only go by whatever is given in front of you. तो वो कई बार ऐसे इन्फ्लुएंसेस और जजमेंट्स ले लेते हैं जो कि उस पर्टिकुलर चीज को वहां देखते हुए नहीं लिए जा सकते, और जो कि इधर वेज जा सकते हैं, और दो ऑप्शन ऐसे बना देते हैं वो, एंड देन दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर ऑप्शन. राइट? सो देर ऑलवेज बी, I've seen in most of these mocks, 3 4 5 क्वेश्चन निकलते हैं जहाँ पे इस तरह के एम्बिग्विटी होती है और वेगनेस होती है. एंड आई ट्राई टू पॉइंट आउट टू देम. सीएल की मॉक्स में दे हैड अ provision of sending a remark or telling them how do you feel about this and did you find anything wrong or missing with this mock. When I used to do that but never got a response. So the point is again that we will have to look at each and every question and option and see कि क्या ये justified है, क्या लॉजिकल है, और नहीं है तो देन आई विल गिव माई लॉजिक. whatever they have given I'll tell you, and then whatever my logic is also I'll tell you. So let's start. We'll go through each and every question, each and every passage. तो पहला पैसेज देखते हैं. राइट? ये जो पर्टिकुलर मॉक बनाई गई है इसमें चारों ही पैसेज डिफिकल्टी लेवल पे काफी ज्यादा है. जनरली आप अगर किसी भी कैट के वीआरसी को देखेंगे तो उसमें आपको दो पैसेज सेट ऐसे मिल जाएंगे जो कि वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. दिल बी यू विल एंजॉय रीडिंग दोज काइंड ऑफ पैसेजेस. दो तो मिल जाएंगे, एक दो आपको मिलेंगे ऐसे बड़े डेंस एब्स्ट्रैक्ट सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, और मे बी समथिंग एल्स, सम आइडियोलॉजी, सम क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी. ऐसे डेंस मिलेंगे, पर वो एक मिलता है. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों के चारों पैसेज, मे बी द फर्स्ट वन वॉज अ स्लाइटली इजियर वन बट रेस्ट ऑफ देम वर ऑल एक से बढ़ के एक थे. मे बी लास्ट वन वॉज ओके but the middle two were pretty challenging. So anyone going through this will struggle, right? So let's going through this and not having a good reading habit will struggle. So let's see and how the questions were, that also we'll see. So technological change is often described as the work of heroic inventors
such as Thomas Edison and Tim Berners-Lee. In reality, it emerges through an incremental process of trial and error, shaped by networks of people working in ecosystems of innovation. Technological change is an evolutionary process, much like biological evolution. Both physical and social technologies follow evolutionary dynamics, co-evolve as physical change spurs social change, which in turn spurs further physical change. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात बताई गई है कि ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो सिर्फ बड़े बड़े जो इन्वेंटर्स होते हैं, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था, टिम बर्नर्स ली, आई कांट रिकलेक्ट उन्होंने क्या बनाया, लेकिन रियलिटी में ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो भी एक इनोवेशन या इन्वेंशन होता है या टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है वो किसी साइंटिस्ट के अकेले की कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। देयर नेटवर्क्स ऑफ पीपल और एनवायरनमेंट होते हैं, इकोसिस्टम्स ऑफ इनोवेशन होते हैं। और टेक्नोलॉजिकल चेंज एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। और फिजिकल और सोशल टेक्नोलॉजी जो होती है ये को इवॉल्व करती हैं। फिजिकल चेंज से सोशल चेंज होता है, right? Any kind of physical change. So, which means any technology, which means, let's say, when automobiles came in, right? Cars, or when we started traveling long distances, so obviously it impacted social change also, right? We could travel to far off places to meet people whom we wanted to meet. क्योंकि पहले it used to take days and months or maybe years, right? Now it could be done much quickly. Aeroplane के आने से तो you can reach any part of the world within the same day almost, right? Which in turn spurs further physical change, और उससे फिर और physical change होता है, right? People can collaborate, they can create new innovations, new changes can happen, right? So technological change जो है वो खाली किसी साइंटिस्ट की डोमेन नहीं है। ये बेसिकली लोगों के इंटरेक्शन से होता है, नेटवर्क्स ऑफ पीपल से होता है, और फिजिकल चेंज से सोशल चेंज अफेक्ट होता है, और सोशल से फिर फिजिकल, तो ये को इवॉल्व होते हैं। वेरिएशन इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अराइजेस फ्रॉम रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, right? जैसे हम लोग ये इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट्स लाइक मंकीज, तो वो जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं। और नेचुरल सिलेक्शन, राइट, नेचुरल सिलेक्शन मींस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हिच मींस जो ट्रेट्स आपको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, दोज ट्रेट्स ओनली गेट पास्ड ऑन टू योर ऑफस्प्रिंग। दिस इज व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरीके से बायोलॉजिकली इवॉल्व हुए हैं हम लोग। विथ फिजिकल एंड सोशल टेक्नोलॉजीज वेरिएशन कम्स फ्रॉम ह्यूमन इमेजिनेशन। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में तो जेनेटिक रैंडम रैंडम है, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट, और नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन फिजिकल सोशल टेक्नोलॉजी में जो वेरिएशन है वो हमारी इमेजिनेशन से आता है और हमारी डिजायर टू इंप्रूव थिंग्स, वी वांट टू डू बेटर, so we initiate physical change and create and sub technologies. We constantly tinker with our technologies. When the smartphone was invented, it was novel combination of existing components. All of these, likewise, modern joint stock company was a new combination of laws, accounting conventions, property rights, business practices. तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने कि एक फिजिकल चेंज है जो कि मोबाइल स्मार्टफोन, और दूसरा सोशल चेंज है विच इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी. It means that each generation can build on what came before, opening up an infinite space of possible designs. Occasionally, discoveries such as fire, electricity, or the laser introduce new building blocks that vastly expand this space of possibilities. So, this particular paragraph tells you कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो एक रैंडम प्रोसेस से होता है, लेकिन जो फिजिकल और सोशल चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो बेसिकली ह्यूमन इमेजिनेशन से होती हैं और आर डिजायर टू इम्प्रूव थिंग्स। फिर उसके इसमें एग्जाम्पल दिए गए थे। Although technological variation is intentional, it remains Darwinian. Right? So Darwinian again means the same. That जो चार्ल्स डार्विन की जो थियोरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, तो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल वेरिएशन को भी उसने कहा है कि वो इंटेंशनल जरूर है। मतलब ह्यूमन बींग्स इंटेंशनली bring about those variations, not like biological variation, but still it is Darwinian. We cannot know at the moment a new technology is created whether it will succeed. The usefulness of a design, whether an arrowhead, a market institution, digital platform, can be tested only through experience. तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये हमें क्या पता कि वो सक्सेसफुल होगी, राइट? कोई भी चीज हो वो सिर्फ एक्सपीरियंस से पता लगेगा। सक्सेस डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स टू टू न्यूमरस टू बी सॉल्व्ड इन एडवांस, एनवायरमेंट, अवेलेबल मटेरियल्स, कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स, यूजर बिहेवियर, कॉम्पिटिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो किसी भी चीज की सक्सेस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जो कि हम जब वो चीज बन रही है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट? जैसे एनवायरमेंट कैसा होगा, अवेलेबल क्या मटेरियल होंगे नहीं होंगे। Like we know that now with so much of AI happening, with so much of these chips being manufactured, there is a shortage of storage space. There is a shortage of so many things, right? Data center बन रहे हैं तो पावर की शॉर्टेज होगी, वाटर की शॉर्टेज होगी। कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स क्या हैं, यूजर कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और ऑल्टरनेटिव्स क्या है। Designs that work spread, those that fail disappear. Same process of variation, selection, or replication of shapes
रेप्लिकेशन शेप सोशल टेक्नोलॉजी फ्रॉम लीगल सिस्टम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे बताया गया कि जो अ, ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है या सोशल चेंज है, ये है इंटेंशनल, ह्यूमन करता है, लेकिन फिर भी डार्विनियन है, क्योंकि we cannot predict whether anything that we change is going to be successful or not. It depends upon so many factors. तो अभी तक अगर हम क्विकली रिकैप करें तो यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजिकल चेंज बताया गया है कि जो करा जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेटवर्क ऑफ पीपल करते हैं, और दूसरा ये बताया गया है कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है वो रैंडम होता है, लेकिन जो फिजिकल और सोशल चेंजेस होते हैं ये ह्यूमन डिजायर से होते हैं, इंटेंशनल होते हैं, और देन फिर भी ये डार्विनियन होते हैं इन द सेंस दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर दे विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो अभी तक ये बातें की गई हैं इसमें। टुडे न्यू फिजिकल टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल नॉट ओनली टू मैनिपुलेट एनवायरमेंट बट ऑल्सो टू अल्टर ओन बायोलॉजिकल मेकअप। CRISPR gene editing tools blur the boundary between biological and technological evolution by allowing big changes to the human germ line। नई फिजिकल टेक्नोलॉजी से हम सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि अपनी बायोलॉजिकल मेकअप को भी चेंज कर सकते हैं, जीन एडिटिंग कर सकते हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी कैन रिस्टोर मिसिंग सेंसेस एंड ऑगमेंट ब्रेन फंक्शंस। और न्यूरालिंक जो है इलॉन मस्क की, उसमें पीपल हु आर who have lost the functions of their brain maybe to some extent, right? They can use technology. Through technology they can enhance their brain function. We are even on the brink of creating life from non-living materials, designing novel living technology with all branches of what the philosopher Chardin called the noosphere evolving in tandem. Humanity may become the first species capable of designing its own evolutionary successors, whether composed of carbon, silicon or both। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे पास अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके कारण हम अपना बायोलॉजिकल मेकअप चेंज कर सकते हैं, मेंटल मेकअप चेंज कर सकते हैं, और अपने सक्सेसर्स को बना सकते हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, राइट? विच मीन्स वी विल बी द फर्स्ट वन हु कैन क्रिएट आवर सक्सेसर्स whether they are composed of carbon, silicon or both। Yet the most rapid evolutionary forces today come from information technology, computing, internet. Computing and the internet have dramatically altered our ability to communicate, coordinate, and control. Underpinning the explosive growth of both physical and social technology, reshaping identity, institutions, behavior, language, writing, printing, successive information revolutions, each transforming social order in unpredictable ways. Who could have foreseen that Gutenberg's press would catalyze the Reformation, scientific revolution, and democratic politics? इसमें ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ है, इसमें कुछ खास नहीं है कि जो सबसे रैपिड, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण चेंजेस है बहुत रैपिड फोर्स से हो रहे हैं, राइट? वी नो दैट टुडे today's information revolution changes our cognition, thinking, emotional lives, moral values, how we organize societies. It blurs the boundary between humans and machines and challenges our traditional modes of governance. तो इससे अब as we know with the AI coming in, the boundary between humans and machines has been blurred, and our traditional modes of governance have been also challenged. Algorithms make decisions once left to human judgment. Platforms shape our relationship, political choices, even our sense of self. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल हैं हमारे रिलेशनशिप को शेप करने में, एज वी नो, पॉलिटिकल चॉइसेस, राइट? सो many elections are basically relying on social media to get a turnaround, and also sense of self. As information technology accelerate, they exert evolutionary pressure on social institutions, forcing them to adapt or risk becoming obsolete, right? So the passage as a this is the only passage which was slightly easier in this whole set, I would say. सो टेक्नोलॉजिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज में कंपैरिजन किया गया था पहले, तो वो एक रैंडम म्यूटेशन से होता है और ये इंटेंशनल होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद में चेंजेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगे हैं, और काफ़ी हद तक दे स्टार्टेड टू रीडिफाइन our relationships, political choices, other things. चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। Which of the following best summarizes the passage? This is like the main idea. Much like evolution, technology develops slowly through gradual variation and selection. Though digital technology has accelerated and transformed the process. So first of all, we'll have to check whether this is factually correct or not. So much like evolution, technology develops slowly through gradual variation and selection. Though digital technology has accelerated and transformed the process. ठीक है, though it is not a very good answer, but we'll keep it. ठीक है, let's look at the other options. Even though people generally credit single inventors, technological change depends on networks of people. ये तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, तो this cannot be the main idea, right? This is very easily eliminated. New developments in technology
Biotechnology and information technology are blurring the line between nature and machine, making it possible to design new forms of life. ये भी सिर्फ एक ही पैराग्राफ में दिया गया है, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, तो ये भी गलत है. From printing presses to social media, information technologies have repeatedly changed social institutions by reshaping how people communicate, think, and organize politically. Now, again, this is also only a part of it because information technology has changed. ये बाद में आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड पैराग्राफ में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये भी गलत है. तो बेस्ट आंसर अमंग दीज इज ओनली वन. तो इट इज नॉट अ वेरी गुड आंसर बिकॉज मच लाइक एवोल्यूशन इट डेवलप स्लोली. ठीक है, लेकिन इसमें फर्क था एक कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो होता है उसमें रैंडम म्यूटेशन से होता है वो, वेर एज दिस हैपन्स बाय इंटेंशन, राइट, एंड ह्यूमन इमेजिनेशन. तो वो चीज़ कैप्चर नहीं की है. बट और दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से ये सब चीज़ें तेज हो गई हैं, ये ठीक है, ये बाद में बताया गया है, तो वी कैन एक्सेप्ट इट, बट नॉट अ ग्रेट क्वेश्चन, आई मीन ऑप्शन, बट स्टिल ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल टू डिटरमिन इन एडवांस. ये यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि we cannot know at the moment a new technology is created whether it will succeed. The usefulness of a design, whether arrowhead and all of this, can be tested only through experience. Success depends on variables too numerous to be solved. Environment, available materials, and all these things, right? So इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी एडवांस में. बिकॉज पीपल कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन टेक्नोलॉजी बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग पार्ट लाइक चिप. ये तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है, इसको हटा दो. Because technologies are built in parts, so each new version can be made by improving and cleaning older ones. Again, not at all linked to this because technology interacts in unexpected ways with nature, material, society and competition. Yes, ये सारी बातें बताई गई थी उसी पैराग्राफ में, वहीं पे जहाँ पे मैंने भी पॉइंट आउट किया था. तो दिस लुक्स ओके. People's creativity and desire to make things better cannot be predicted. Useless option. So this is a correct answer. This was a easy question. This was also a easy to moderate question, I would say, not very difficult. According to the author, technological evolution resembles biological evolution in all of the following ways except. So we have seen that biological evolution होता है जो क्या होता है वो random होता है, right? Variation in biological evolution arises from random genetic mutation, natural selection. With physical and social technologies, variation comes from human imagination and desire to improve things. तो ये एक difference है इसमें, right? बाकी चीजों में similarities हैं. तो both operate through process of variation, selection and replication that determine which designs persist over time. ये तो ठीक है. This is one of the ways in which the resemblance is there between these two, right? क्योंकि दोनों जो है वो वेरिएशन सिलेक्शन से चलते हैं, राइट. तो ये बात तो यहाँ से हमारे को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ से समझ में आ जाती है कि ये भी वेरिएशन से चलते हैं. सेम प्रोसेस ऑफ वेरिएशन है ना, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे इनफैक्ट वेरी क्लियरली. सेम प्रोसेस ऑफ वेरिएशन, सिलेक्शन एंड रेप्लिकेशन शेप्स सोशल टेक्नोलॉजीज, राइट. तो ये तो दिया हुआ है, वेरिएशन, सिलेक्शन एंड रेप्लिकेशन. तो इसको तो गलत कर दो. इन बोथ केसेस द सक्सेस ऑफ गिवन वेरिएशन कैन बी डिटरमिन्ड ओनली आफ्टर इंटरैक्ट्स. यस, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था. इन बोथ डोमेन्स अनसक्सेसफुल वेरिएंट्स टेंड टू डिसअपीयर व्हाइल सक्सेसफुल वंस स्प्रेड एंड प्रोलिफरेट. ये भी है कि जो अनसक्सेसफुल होते हैं, ये साफ साफ दिया हुआ है, वो गायब हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं. और जो सक्सेसफुल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिजाइन्स दैट वर्क स्प्रेड, दोज दैट फेल डिसअपीयर, है ना. तो यही चीज वहां पे बताई गई है. सो दिस इज ट्रू. सो दिस इज ट्रू. बोथ डिपेंड ऑन मोस्टली रैंडम चेंजेस. आगे गलती, क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रैंडम चेंजेस पे डिपेंड करता है, ये तो इंटेंशनल होता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो अगेन आई वुड से दिस वाज इजी क्वेश्चन. The passage implies all of the following information about sorry, all the following about information revolution except they change society in ways people cannot easily predict when they first appear. हाँ, ये तो बोल सकते हैं कि पहली बार जब कोई भी चीज आती है तो किस तरीके से वो चेंज करेगी दुनिया को नहीं बता सकते. तो दिस इज ट्रू. दे पुट प्रेशर ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन टू चेंज और सर्वाइव और एल्स फॉल बिहाइंड. ये भी दिया हुआ है एंड में कि सोशल इंस्टीट्यूशन को भी चेंज करना पड़ता है. दे डीपली चेंज हाउ पीपल थिंक, लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. ये भी बताया गया है. दे आर मेनली ड्रिवन बाय डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू रीडिजाइन पॉलिटिक्स एंड मोरल वैल्यूज. देखो ये तो कॉज एंड इफेक्ट रिवर्स हो गया. कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे आर ड्रिवन बाय डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू रीडिजाइन पॉलिटिक्स. तो अगर हमको रीडिजाइन पॉलिटिक्स करना है तो हम ये टेक्नोलॉजिकल चेंज लाते हैं. तो दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट विच इज रॉन्ग. ये उल्टा हो गया.
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उससे रीडिजाइन होती है पॉलिटिक्स. इट इज एग्जैक्टली रिवर्स एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. Right, so this you can say was a little moderate question. But overall, this was the only passage which I found was slightly easier to handle. बाकी के passage difficult थे reading में. हाँ, questions तो देखेंगे हम. Questions were not that difficult. Okay, questions समझ में आ जाएंगे हमें कि वो difficult इतने नहीं है. But लेकिन हाँ, passages थोड़े से समझने मुश्किल है. So let's go to the next question. Now here I have a difference of opinion. यहाँ पे the quiet lot far from rail lines and military targets became a crucial refuge. As World War II engulfed Europe, French officials launched a meticulous plan to protect the treasures of the Louvre. Louvre is a museum there, and other national museums. तो वर्ल्ड वॉर टू जब यूरोप में फैल रहा था तो फ्रेंच लोगों ने कहा कि यार हमारे ये जो नेशनल ट्रेजर्स हैं ये भाग जाएंगे लेके, इनको बचाना चाहिए. तो यहाँ तो नहीं आ सकता ये. Beginning in 39, thousands of artworks were evacuated from Paris, coded by importance and dispersed across rural France. तो बहुत सारे आर्ट वर्क्स हजारों की तादाद में जो है वो कोड करके इम्पोर्टेंस से और उसको फैला दिया गया रूरल फ्रांस में अक्रॉस. द क्वाइट लॉट रीजन फार फ्रॉम रेल लाइंस एंड मिलिट्री टारगेट्स बिकेम अ क्रूशियल रिफ्यूज. तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे आ जाएगा. मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाना चाहिए. अब डिस्पर्स्ड थ्रू रूरल फ्रांस एट शैटो. शैटो मीन्स वहाँ पे जो कैसल्स होते हैं फ्रांस में, उसको शैटो बोलते हैं. एट शैटो डे मोन्टाल द मोनालिसा एंड 1300 वर्क्स वर हिडन अंडर कांस्टेंट गार्ड, while other chateaux sheltered masterpieces such as the Seated Scribe. Curators endured cold, damp conditions, threat of bombing, carefully monitoring the crates and conducting fire drills. They also secretly looted Rothschild artworks by disguising them as state property. तो मेरे ख्याल से मतलब ये इन्होंने 3 बता रखा है इसका आंसर, है ना. 3 लेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने यहाँ पे जब बोल दिया कि इन्होंने आपने उसको इवैक्यूएट किया और रूरल फ्रांस में पहुंचा दिया, तो क्वाइट लॉट जो रीजन है वो रूरल फ्रांस में ही कोई क्वाइट रीजन होना चाहिए ना, फार फ्रॉम रेलवे लाइंस. ये एक सेंट्रल क्रूशियल रिफ्यूज बन गया. वहां पे जाके लोग डिपॉजिट कर रहे थे इन चीजों को, छुपा रहे थे वहां पे. तो ये शैटो मोंडेल वगैरह वहीं पे आते होंगे. तो ये जो है 3 में उन्होंने बता दिया है. तो आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज इट इज टू लेट हियर. और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस से भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि आफ्टर द वॉर डिस्पाइट शॉर्टेजेस एवरी आर्टवर्क सेफगार्डेड इन द लॉट returned safely to Paris, a testament to the courage and vigilance of museum staff and local communities. तो सेकेंड और थर्ड में इसमें डाउट होना चाहिए किसी को भी, मुझे भी था. एंड आई ऑल्सो इवेलुएटेड एंड आई फाउंड सेकेंड टू बी अ बेटर प्लेस to put it, but they have put it at 3. I tried to locate the article from which they have picked it, but I couldn't. नहीं मिला मुझे, ढूंढा थोड़ा सा मैंने. तो मुझे नहीं पता, हो सकता है उसमें आर्टिकल में 3 पे दिया हुआ, बट देन इफ 3 पे दिया हुआ है तो इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन बिकॉज there surely is an ambiguity here, कि 2 पे है कि 3 पे. 3 पे भी लगा दोगे तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2 पे जाना ज़्यादा बेटर है. So I would have marked 2 here. They have marked 3, so this is one such discrepancy. Passage given below is followed by 4 summaries. ठीक है. According to Foucault, governmentality, a form of power that is grounded in the management of populations, is central to modernity. तो मॉडर्निटी मीन्स आज का जो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्निटी में गवर्नमेंटैलिटी, जिससे कि हम मैनेज करते हैं पॉपुलेशन को, ये सेंट्रल है उसका. रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशंस इन अ पर्टिकुलर सब वेराइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंटैलिटी. रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशंस इज अ पर्टिकुलर सब वेराइटी. तो ये जो गवर्नमेंटैलिटी है उसमें आप एनवायरमेंट को रेगुलेट करते हो और ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशंस को भी आप रेगुलेट करते हो, वो उसका पार्ट है. डिजिटल मीडिया इंक्रीजिंगली एम्बॉडी दिस रोल बाय सराउंडिंग एंड को constituting human environment through pervasive networks of devices and sensors that generate vast data streams. तो डिजिटल मीडिया ये काम करते हैं कि वो ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं, बहुत सारे डेटा जनरेट करते हैं, which are continuously fed back into systems that monitor, execute, and adjust actions. Environmentality, thus understood, is a manifestation of power that does not target human actors and human populations directly like other forms of governmentality. तो एनवायरमेंटलिटी क्या है कि ये डायरेक्टली आपके पास में डायरेक्टली आके कोई कुछ नहीं बोलेगा. इट इनडायरेक्टली आपको सर्विलेंस नेटवर्क लगा रखे हैं उन्होंने, जिससे आपको मॉनिटर किया जा रहा है. सेंसर लगा रखे हैं. आप कोई भी टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं, आप कोई भी
किसी भी बायोमेट्रिक एक्सेस में आप घुस रहे हैं कहीं पे भी, तो आप मॉनिटर हो रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट आपको टारगेट डायरेक्टली नहीं कर रही है, लेकिन आपकी सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। Instead, it is a regime of management and control that seizes on the relationality of humans with their environment. तो ह्यूमन और उसका एनवायरनमेंट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि ह्यूमन का और ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट के साथ में जो रिलेशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इन मॉडर्निटी डिजिटल मीडिया रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटलिटी वेयर पावर वर्क्स नॉट थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल बट थ्रू डेटा ड्रिवन सिस्टम्स दैट सटली शेप बिहेवियर। देखो, डेटा ड्रिवन सिस्टम जो है ना, आपके शेप नहीं कर रहे हैं बिहेवियर को। वो बोल रहा है कि जो आपका रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ में, ह्यूमन रिलेशन है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं एक्शन को। आपको पता ही नहीं है कि आपके ये सारी चीजें आपका डेटा इकट्ठा कर रही है। तो इसमें शेप कैसे हो रहा है आपका बिहेवियर, है ना? तो ये बेसिकली इसमें गलत है। Environmentality is a modern expression of governmentality, indirectly influencing people through widespread data system embedded in digital media. See, indirectly influencing people, again, how? It is a modern expression of governmentality indirectly through widespread data systems embedded in digital media. इसमें ये नहीं लिखा है कि जो डेटा सिस्टम्स हैं वो क्या मॉनिटर कर रहे हैं, राइट? दे आर मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें नहीं है। In modernity, governmentality and environmentality operates as mode of control that regulate people and their interaction with the environment through data-driven systems. So, in modernity, governmentality and environmentality operate as modes of control. ऐसा तो नहीं है। ये तो यहाँ पे हायरार्की गलत दे दी है इसने। वो देखो क्या लिखा है उसने कि मॉडर्निटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंटालिटी, और जो उसको डिजिटल मीडिया के थ्रू जो हम कर रहे हैं अभी, उसको एनवायरमेंटलिटी बोलते हैं। So governmentality and environmentality. So environmentality is a subset of governmentality. Operate as mode of control that regulate people and interaction with the environment through data-driven systems. ऐसा नहीं है, data-driven systems के थ्रू मॉनिटर करते हैं वो, तो रेगुलेट इस तरह से नहीं करते कि उनका इंटरेक्शन वो थ्रू डेटा ड्रिवन सिस्टम से एनेबल कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। डिजिटल मीडिया इनैक्ट एनवायरमेंटालिटी अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर that governs people indirectly by managing their environmental relations through data-driven systems. So this looks to be the best among all. So anyway, this was difficult also, and this also is a difficult question because environmentality, governmentality, modernity, right? So many other such terms are there. So D was a correct answer here. Let's look at this passage now. Now, this is a little difficult passage. Let's try to understand this. Does time exist as an objective phenomenon or only as something humans experience and interpret? ऑब्जेक्टिव फिनोमेना क्या हुआ? सी, ऑब्जेक्टिव मीन जैसे घड़ी में अभी 11 बज रहे हैं, राइट? सपोज इट इज 11, तो 11 के बाद में 11:01 आता है, उसके पहले 10:59 आता है। ये सब ऑब्जेक्टिव चीजें, राइट? दीज आर ऑल, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डज टाइम एग्जिस्ट एज एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिनन, या फिर ये सिर्फ जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और इंटरप्रेट करते हैं। बिकॉज सी, टाइम इज नॉट रियली समथिंग विच इज लाइक एक रियलिटी जैसे इसको बोलते हैं ना कि टाइम कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं कि जैसे प्लानिटरी बॉडी है अर्थ, इट इज नॉट अ मटीरियल थिंग, राइट? इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग। टाइम तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव है, और या सिर्फ जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और इंटरप्रेट करते हैं वो है? थिंकर्स हैज वेरीड एज एरिस्टोटल, Augustine and Henry Bergson hesitated before answering this question, noting that the past no longer exists, the future has not yet arrived, and the present vanishes as soon as it appears. तो ये एक पैराडॉक्स है कि पास्ट जो है वो तो है ही नहीं अभी, फ्यूचर अभी आया नहीं है, और प्रेजेंट तो जैसे आप बोलते जा रहे हो प्रेजेंट खत्म होता जा रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट क्या है? एक माइक्रो सेकेंड है, एक नैनो सेकेंड है, मिली सेकेंड है, क्या है? कुछ नहीं पता। इन रिस्पॉन्स टू दिस पैराडॉक्स, पॉल रेक्वेयर proposed that time is not primarily measured by clocks but configured through narrative. तो ये पॉल रिक्वेयर करके एक राइटर हैं जिन्होंने प्रपोज किया है कि टाइम जो है वो क्लॉक जो मेजर करती है वो नहीं है, वो नैरेटिव के थ्रू कॉन्फ़िगर होता है। नैरेटिव मीन्स कि हम कोई स्टोरी अनफोल्ड कर रहे हैं, तो स्टोरी एक चल रही है, पहले ऐसा हुआ, अब ऐसा है, बाद में ऐसा हुआ, उसके थ्रू अनफोल्ड होता है। इन इस 3 वॉल्यूम वर्क टाइम एंड नैरेटिव रिक्वायर
argues that narrative gives form to temporal means time experience both in historiography and in fiction. तो वो उसका हिसाब से जो नैरेटिव है वो फॉर्म देता है टाइम के एक्सपीरियंस को, ना कि घड़ी की टिक टिक. ओके, सो घड़ी की टिक टिक जो है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेनी टाइम्स you are so engrossed in your thoughts that 1 hour will go by, but you will realize that अरे पता ही नहीं पड़ा 1 घंटा निकल गया. और that or whenever let's say you are having fun, तो जैसा कहते हैं ना, when you are having fun then 1 hour also seems like a minute, or when you are let's say waiting at a doctor's reception then 1 minute seems like an hour. तो ये टाइम जो है ये बड़ा रिलेटिव है, राइट. 1 minute कैन फील लाइक एन आवर एंड 1 hour कैन फील लाइक अ मिनट. सो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो दिस रिक्वायर फेलो इज सेइंग जो नैरेटिव जो है वही हमारे टाइम के एक्सपीरियंस को फॉर्म देता है. रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ फिक्शन, उसने क्या किया, उसने 3 किताबें ली, 3 so-called novels of time, तो जिसमें टाइम के बारे में कुछ था, जैसी 3 नॉवेल्स ली. मिसिस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, एक बड़ी फेमस राइटर है वर्जीनिया वुल्फ. मैजिक माउंटेन बाय थॉमस मान एंड इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम बाय मार्शल प्राउस्ट. ये 3 बड़े बड़े राइटर्स की उसने 3 किताबें ली जिसमें कि टाइम से रिलेटेड थी जो. Although these works appear formally distinct, Require treats their temporal structures as variations of a single, largely homogeneous narrative time. तो ये तीनों जो वर्क है ये वैसे तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन इनके जो टाइम के स्ट्रक्चर्स को वेरिएशन को माना गया रिक्वायर ने एज अ वेरिएशन ऑफ अ सिंगल लार्जली होमोजीनियस नैरेटिव टाइम. तो इसको नैरेटिव टाइम का एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर माना कि ये तो स्ट्रक्चर जैसे ही होता है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. This time rooted in Hegelian romantic tradition follows the logic of development, continuity and eventual decline. अब ये देखो, Hegelian, Hegel was a philosopher, right? Romanticism was a tradition, right? Was a movement in literature and in arts. Romantic, right? Romantic किसको बोलते हैं? Romantic means things which are not driven by reason, right? Romantics कौन होते हैं? Romantic poets होते हैं, romantic writers और romantic artists है. तो they are not driven by रीजन, मतलब वो इमोशन से ड्रिवन होते हैं. रोमांटिक नोशंस होते हैं हम लोगों को, हम लोग एक आइडियल नोशन लेके चलते हैं किसी भी चीज के, है ना. कोई सपोज करो यू आर नॉट वर्किंग इन अ कंपनी बट यू वांट टू वर्क इन दैट कंपनी, तो आपके दिमाग में बड़े रोमांटिक नोशन होगा इस कंपनी के, अरे वहां तो काम करने में ऐसा होगा वैसा होगा. रियलिटी कुड बी समथिंग एल्स. सो व्हेनेवर you talk of romanticism, so which means they were not driven by reason, they were driven by emotions, passions, and other things, but not by reason. तो जो हेगेलियन के टाइम का जो रोमांटिक ट्रेडिशन था उसमें एक टाइम का लॉजिक था, डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी एंड इवेंचुअल डिक्लाइन. कोई भी चीज जो है वो पहले डेवलप होती है, फिर कंटिन्यू होती है और फिर डिक्लाइन हो जाती है. तो एज पर दिस रिक्वायर ने 3 किताबें उठाई और उसको एक ही थीम का रिप्रेजेंटेटिव माना कि डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी और इवेंचुअल डिक्लाइन. नाउ दिस ऑथर डजंट एग्री विथ हिम. Such an approach, however, underestimates the diversity of temporal experiences these novels articulate. तो ऑथर ने रिक्वायर की बात से वो एग्री नहीं हो रहा है. रिक्वायर ने सभी को एक यूनिफॉर्म वेरिएशन, एक यूनिफॉर्म माना, सिंगल लार्जली होमोजेनियस नैरेटिव टाइम माना कि हर बार टाइम ऐसे ही फॉलो होता है कि डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी एंड डिक्लाइन. लेकिन ऑथर कहता है ये अप्रोच जो है इसमें डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को अंडर एस्टिमेट किया गया है. rather than expressing a unified temporality, 3 texts present at least 3 fundamentally different modes of time. तो ये जो 3 टेक्स्ट हैं ये 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइम बताते हैं. मैन की जो मैजिक माउंटेन है, इट आयरनाइजेस द रोमांटिक नोशन ऑफ हिस्टोरिकल राइज एंड फॉल by staging them as both suspended and exaggerated within the isolated space of a sanatorium. Now, अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन के लिए आपको you have to have an understanding of Thomas Mann's book कि वो what was it about, मैजिक माउंटेन, अदरवाइज ये समझ ही नहीं आएगा किसी को. तो ये इस तरह की मैं बोल रहा था कि पैसेज जो है वो गलत होते हैं ना. ओके, अब नाउ आयरनाइजेस मींस कि उसको क्रिटिसाइज करता है, एक तरह से सरकास्टिक आयरनी, राइट. सो इज लाइक अ सरकाजम, काइंड ऑफ अ सरकाजम. तो जो ऑथर कह रहा है कि जो मैजिक माउंटेन है उसमें जो हिस्टोरिकल राइज एंड फॉल जिस तरीके से होता है एक टाइम का बताया गया है, उसको तो ये क्रिटिसाइज, सरकाजम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. टाइम को उसने बताया कि वो एक सस्पेंडेड और एग्जैजरेटेड है विद इन द आइसोलेटेड स्पेस ऑफ अ सैनिटोरियम. तो उसमें क्या होता है कि जो सैनिटोरियम मीन्स क्या होता है
जहाँ पे कि लोग जो जिनको टीबी ऐसी बीमारी होती है वो वहाँ पे रिकवर करने के लिए जाते हैं और ईयर्स टुगेदर वहीं पे रहते हैं। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल यू कैन से। तो जो मरीज वहाँ पे होते हैं वो टाइम का सेंस ही उनका खत्म हो जाता है, उनके लिए टाइम सस्पेंड हो जाता है। राइट, एक मरीज है वो सुबह उठता है, जो भी उसकी एक्टिविटी है वो करता है, आपने देखा होगा जैसे पागल खाने भी होते हैं वहाँ पे भी। तो कोई भी इस तरीके के जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलते हैं, तो वहाँ पे मरीज लोग जो होते हैं क्या उनका टाइम का उनको ऐसे चलता है कि सुबह की एक तरीके से पहले बढ़ा फिर कंटिन्यू फिर फॉल, ऐसा नहीं होता। उनके लिए टाइम सस्पेंडेड रहता है। तो ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो रिक्वायर है इसने एक सिंगल लार्जली होमोजीनियस नैरेटिव लिया है टाइम का, ये गलत है। Mrs. Dalloway, Wolf Mrs. Dalloway constructs what may be called the simultaneity of the dissimultaneous. Dissimultaneous में जो एक साथ नहीं होता, लेकिन वो भी एक साथ हो रहा है मिसेस डालवे की बुक, इसकी बुक में, वुल्फ की बुक में, वेयर प्राइवेट मेमोरी, सोशल रूटीन एंड हिस्टोरिकल ट्रॉमा अनफोल्ड एट वंस विद इन ए सिंगल डे। एक ही दिन में आपको प्राइवेट मेमोरी भी आ जाती है आपकी पुरानी चीजों की, सोशल रूटीन जो आप रोज कर रहे हो वो भी आ जाता है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा भी आ जाता है। तो अलग अलग टाइप की चीजें एक ही दिन होने लगती है। Proust's novel finally reveals a deeply heterogeneous time grounded in memory in which past and present collapse into one another। और प्राउस के नॉवल में भी यही होता है कि टाइम जो है वो कोई होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस होता है, उसमें पास्ट और प्रेजेंट एक साथ ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाले पैराग्राफ में बताया गया था कि रिक्वायर ने तीनों की बुक को एक ही जैसा बता दिया कि एक नैरेटिव टाइम फॉलो करता है, डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी और इवेंचुअल डिक्लाइन का। और ऑथर ने उसको चैलेंज किया यहाँ पे तीनों बुक्स में, उसने बताया कि ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से टाइम को लिया गया है, और उसमें कहीं पे वो सस्पेंडेड है, कहीं पे वो रोमांटिक नोशन जो है उसको चैलेंज किया गया है, कहीं पे एक ही साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, और इसमें पास्ट और प्रेजेंट कोलैप्स हो गए। Require explicitly rejects a Bergsonian reading of Proust. Yet this dismissal obscures what is most distinctive about Proustian temporality। वो कहता है कि ये बर्ग जो है ना, तो जिस तरीके से बर्ग ने इंटरप्रेट किया था प्राउस्ट को, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो डिसमिसल ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्राउस्ट की जो टाइम के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए जो सबसे डिस्टिंक्टिव चीज है वो तो ऑब्सक्योर हो गई इसमें। मतलब व्हाट इज सेइंग इसकी ये गलत तरीके से रिजेक्ट किया है, ये रिक्वायर वाज रॉन्ग इन रिजेक्टिंग इट। हेनरी बर्गसन डिफेंडेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन विच टाइम इज क्वालिटेटिव, अनइवन एंड इररिड्यूसिबल टू क्रोनोलॉजी। तो हेनरी बर्गसन ने तो उस तरह के टाइम को डिफेंड किया है जहाँ पे कि कोई क्रोनोलॉजी की बात नहीं हो रही है। इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम इनवॉलंटरी मेमोरी reveals precisely such a duration, one in which temporal boundaries dissolve. Here, time is not produced by a narrative structure but disclosed through experience। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिकर ने बर्गसोनियन रीडिंग ऑफ प्राउस्ट को डिसमिस किया है वो गलत डिसमिस किया है, क्योंकि प्राउस्ट ने जो इस तरीके से टाइम की अंडरस्टैंडिंग इसमें दिखाई गई है इस किताब में, वो बर्ग जो है उसके हिसाब से ही है। बर्ग ने जो चीज को डिफेंड किया है कि उसमें कोई क्रोनोलॉजी जैसी सिंपल चीज है ही नहीं। राइट, टाइम जो है वो नैरेटिव स्ट्रक्चर से नहीं आता बल्कि एक्सपीरियंस से आता है। द डिफरेंस पॉइंट्स टू अ डीपर मेथोडोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट। फॉर रिक्वायर नैरेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसेस टाइम, टेम्पोरलिटी इज द आउटकम ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो अब इसमें एक डिसएग्रीमेंट यहाँ ये है कि रिक्वायर के हिसाब से नैरेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसेस टाइम, मतलब आप पहले नरेट करोगे फिर टाइम एक्सपीरियंस करोगे। तो किसी ने स्टोरी सुनाई उसके हिसाब से टाइम निकलेगा। एन ऑल्टरनेटिव व्यू होल्ड्स द टाइम इज फर्स्ट एक्सपीरियंस देन रेंडर्ड इंटेलिजिबल थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज। दूसरा ये कहता है कि नहीं, टाइम को पहले एक्सपीरियंस किया गया फिर उसको हमने नरेट किया गया, फिगरेटिव लैंग्वेज, एंड ओनली लेटर ऑर्गेनाइज इनटू नैरेटिव फॉर्म। ट्रोप्स, ट्रोप्स मीन्स जो ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं, मेटाफोर, मेटोनिमी, सुनेक्डोस, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। Do not merely decorate narrative but make temporal experiences thinkable. In this sense, figurative language reveals time before it is narrated। तो यहाँ पे अब एक और डिफरेंस बताया है कि जो रिक्वायर है उसके हिसाब से पहले नैरेटिव होता है फिर टाइम आता है, जबकि ऑथर कह रहा है कि पहले टाइम एक्सपीरियंस करते हैं फिर नैरेटिव होता है, और उसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू, नैरेट करते हैं थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज। जैसे अब कुछ मेटाफर की बात करें हम, तो आपने सुना होगा बहुत कॉमनली टाइम फ्लाइज। तो टाइम फ्लाइज जो है व्हेन यू आर हैविंग फन सपोज, तो आप पहले फन के टाइम पे टाइम फ्लाइज एक्सपीरियंस कर रहे हो, फिर आपने लिखा ये तो टेम्पोरल एक्सपीरियंस पहले आया, देन नैरेटिव आया। राइट, आपने ये बाद में लिखा। ऐसा थोड़ी कि पहले टाइम फ्लाइज आपने लिख दिया और उसके बाद उसको एक्सपीरियंस किया, ऐसा थोड़ी है। जो रिक्वायर है उसके हिसाब से पहले नैरेटिव है
आपने लिख दिया टाइम फ्लाइज, बाद में आप टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जबकि ऑथर बोलता है ऐसा नहीं है। फिर जैसे हम बोलते हैं टाइम स्टैंड स्टिल, टाइम स्टूड स्टिल, ये टाइम वहीं के वहीं रुक गया, ये आपने पहले एक्सपीरियंस किया ना, फिर आपने इसको नरेट किया। तो ये डिफरेंस है इसमें, कि फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो रिवील्स टाइम बिफोर इट इज नरेटेड। Such an approach also invites historical context. The early 20th century saw radical changes in how time was perceived, driven by industrialization, new technologies, and war. Thinkers and artists challenged the idea of a uniform linear time. अब पुराने जमाने में क्या था कि उस टाइम पे ना तो वो टेक्नोलॉजी थी, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वॉर वगैरह था। तो पुराने जमाने के जो लोग थे, उनके हिसाब से जो टाइम था वो लीनियर था, दैट मीन्स वो एक ही तरीके से आगे बढ़ता था। लेकिन अब जो सेटिंग हो गई है वुल्फ मान और उसमें इसमें एक सिंगल नैरेटिव नहीं है, बट रेजिस्ट इट ईच ऑफरिंग अ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्स टू टेम्पोरल इंस्टेबिलिटी। तो उस टाइम पे चीजें बड़ी सिंपल थी, लेकिन अब जो है वो चीजें बड़ी डिफरेंट हो गई, इसलिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना जरूरी है। टेकन टुगेदर दीज नॉवेल्स सजेस्ट टाइम इज नॉट सिंगुलर और यूनिफॉर्म बट कंपोज ऑफ मल्टीपल कंपीटिंग टेम्पोरलिटी। तो टाइम कोई ऐसा सिंगुलर यूनिफॉर्म नहीं है कि पहले डेवलपमेंट हुआ फिर कंटिन्यूटी और फिर डिक्लाइन, ऐसा नहीं है। मल्टीपल कंपेलिंग टेम्पोरलिटी होती है, कंटिन्यूअस, फ्रेगमेंटेड एंड इनका रिकर्सिव। मतलब कई बार आप जैसे बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपके दिमाग में कुछ पुरानी बातें आ गई, तो आप बैठे प्रेजेंट में हो लेकिन बातें पुरानी आ गई, या सडनली आपको कोई गाना सुनाई दे गया, वो गाना आपको पुराने जमाने में ले गया। आपने मे बी सम पीपल हु आर टुडे दे आर एट एन ओल्डर एज, तो मे बी दे आर टेकन बैक टू देयर यंगर डेज, कॉलेज चले गए, स्कूल के टाइम पे चले गए, या फिर कोई ऐसी अरोमा आ गई कुछ खाने की जो आपकी माँ बनाया करती थी या दादी बनाती थी, एंड देन यू आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट एरा। तो टाइम इस तरीके का है कि करंट और प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पास्ट में भी चले गए हैं साथ साथ। तो रिकवर के हिसाब से तो नैरेटिव लीनियर होता है कि भाई पास्ट के बाद प्रेजेंट, अब प्रेजेंट के बाद पास्ट में नहीं जा सकते आप, और फिर फ्यूचर। लेकिन ऐसा नहीं है, इट ऑथर यही कह रहा है कि टाइम इज नॉट सिंगुलर यूनिफॉर्म बट कंपोज ऑफ मल्टीपल competing temporalities, continuous, fragmented, recursive. Rather than merely illustrating theory, they reveal aspects of temporal experience that historiography often overlooks, showing that narrative is both a literary form and a way of thinking through time. Let's look at the questions now. According to the passage, all of the following statements reflect the author's argument about time and narrative, except though time appears real and concrete, it remains deeply unstable on examination. ये तो है, this is true, not the answer. Stories organize our experience of time and give it structure and meaning. ये भी है, ये तो एग्री हो रही है, बात बोल रहा है author. Even when forms differ, literature presents time as orderly in a logical way. बिल्कुल गलत है ये। उन्होंने वहीं पे जो तीन तरह की किताबों की बात की है, थॉमस मान की, मिसिस डैलोवे की है और प्राउस्ट की, तो उसमें सब में अलग अलग तरीके से बताया गया है, कोई ऑर्डरली और लॉजिकल वे में नहीं बताया गया। सो दिस लुक्स लाइक द आंसर। मान पोर्ट्रेस टाइम इन अ वे दैट क्वेश्चंस द स्टडी आइडिया ऑफ स्टडी हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। यस, डेफिनेटली हमने देख लिया उसकी किताब में इसने किस तरीके से लिखा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। The phrase simultaneity of this simultaneous in the context most nearly implies, तो डिस साइमल्टेनियस में एक साथ जो नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली वो एक साथ हो रहे हैं। Many events being packed together into a tight timeline, नहीं, different kinds of time being experienced at once. Yes, looks like okay. Feeling that private and public experiences, private public experience की कोई बात ही नहीं है. Memories and history slowly coming together. This was a very easy question, I would say. This question was also easy to moderate. Question easy to moderate. The passage was very difficult. Okay? This passage is very difficult, no doubt. पैसेज अगर समझ में आ गया तो आपके चारों क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे. Author disagrees with requires rejection of a Bergsonian reading of Proust because, see, Bergsonian reading of Proust, so explicitly rejects a Bergsonian reading of Proust. तो इसने रिजेक्ट कर दिया था. क्यों? क्योंकि बर्गसोनियन रीडिंग जो है, बर्गसन जो है, बर्गसन क्या कह रहा है कि डिफेंडेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन विच टाइम इज क्वालिटेटिव अनइवन एंड इररिड्यूसिबल टू क्रोनोलॉजी.
और जो सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम में यही इस तरह की चीजें हुई। तो टाइम इज नॉट प्रोड्यूस बाय नैरेटिव स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली रिक्वायर जो है वो कह रहा है कि टाइम जो है वो नैरेटिव स्ट्रक्चर से आता है, जबकि बर्गसन कह रहा है कि नहीं आता, तो इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो ऑथर इज एग्रीइंग विथ बर्गसन एंड रिजेक्टिंग रिक्वायर्स रिजेक्शन ऑफ बर्गसोनियन रीडिंग, राइट। तो रिगर रिक्वायर ओवरलुक्स द फैक्ट दैट प्राउस मेनली यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज, ये तो फिगरेटिव लैंग्वेज की बात यहाँ पे हुई नहीं है। रिक्वायर फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट प्राउस नॉवल एक्चुअली फॉलो द क्लियर एंड ऑर्डरली, ये तो है ही डिस्टॉर्शन, गलत है। Require underestimate the influence of early 20th century industrial and technological change. Require misses how Proust's novel shows a deeply personal experience of time that cannot be reduced to narrative. Yes, exactly. This is the right answer. So again, question easy था, मुश्किल नहीं था, तो ऑप्शन भी कोई चैलेंजिंग नहीं थे। Tropes such as metaphor, metonymy, and synecdoche do not merely decorate narrative but make temporal experience unthinkable. Which of the following statement best illustrates? तो एक मेटाफर देखना पड़ेगा हमको कहाँ पे। ग्रीफ इज अ सीजन, हो गया मेटाफर, दैट रिटर्न्स एवरी ईयर no matter how carefully one shuts the door. So this is surely a metaphor. This surely is a temporal thing. ग्रीफ को सीजन बता दिया गया है जो हर साल आ जाता है, मतलब कि ग्रीफ इज समथिंग विच humans have to experience again and again, no matter how they try to avoid it. Sunset spilled gold across the river, painting the sky in an extravagant color. इसमें तो टाइम की कोई बात ही नहीं हुई है। स्टोरी begins in winter, ends in spring, making the passage marking the passage of several months. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मेटाफर है ही नहीं कि स्टोरी चालू विंटर में होती है और स्प्रिंग में एंड हो जाती है। तो इसमें तो कोई भी मेटाफर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका मीनिंग है। भले टाइम उसमें लिखा हुआ है, लेकिन टाइम इज नॉट रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी मेटाफर। हर मेमोरीज वर डिस्क्राइब्ड इन रिच एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज टू हाइटन द इमोशनल टोन। अगेन टाइम का कोई लिंक ही नहीं है इसमें। ये द राइट आंसर। तो क्वेश्चंस आई वुड से वर इजी, बट पैसेज वाज डिफिकल्ट, नो डाउट। Okay, let's look at the next question. Okay, so let's look at this parasymbol. Other microbes. यहाँ से start नहीं सकता. Science writer Amber Dance draws on research by Manu Prakash to compare extraordinary microbes to elite athletes, showing that for them feats of speed, force and precision are matters of survival rather than sport. तो एम्बर डांस एक राइटर हैं, उन्होंने मनु प्रकाश की रिसर्च के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है और कहा है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइक्रोब होते हैं वो एलीट एथलीट्स जैसे होते हैं, और काफी उनके लिए जिस तरीके की वो हरकतें करते हैं, फीट्स ऑफ स्पीड, फोर्स एंड प्रिसीजन, सर्वाइवल के लिए करते हैं। द पैरासाइट एल्गेरी फायर्स, illustrating how life at tiny scales obeys physical rules that may inspire future technological innovation. The bacterium Magnetococcus marinus can swim 500 body lengths per second using rotating. तो ये 2 से स्टार्ट होगा, दिस विल स्टार्ट विद 2 एंड इट विल गो टू 4, क्योंकि इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी माइक्रोब्स एलीट एथलीट्स जैसे होते हैं, तो वो स्विम कर रहा है 500 बॉडी लेंथ पर सेकेंड यूजिंग रोटेटिंग एंड दिस व्हाइल द आर्कियन कंपेरेबल स्पीड्स इन एक्सट्रीम हाइपोथर्मल हाइड्रोथर्मल इवेंट्स। तो 2 और 4 आ गए। नाउ द चैलेंज इज वेदर इट शुड बी 1-3 और 3-1। तो अब ये कैसे डिसाइड करें? द पैरासाइट fires algae fires a microscopic harpoon to invade host cells, invading how life at tiny scale obeys physical rules that may inspire future technological innovation. ये फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात हो रही है। अदर माइक्रोब्स डिस्प्ले फिजिकल स्ट्रीम्स लाइक दिस कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेटिंग पावरफुल दिस। तो इन दोनों में से नेक्स्ट पे कुछ भी आ सकता है। अदर माइक्रोब भी, बैक्टीरिया के बाद अदर भी आ सकता है, पैरासाइट ये भी आ गया, फिर अदर भी आ सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है, ये जो दिखाएगी दैट में इंस्पायर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये एंड में आना चाहिए। क्योंकि आपने अगर यहाँ लिखा है कि दे ओबे फिजिकल रूल दैट में इंस्पायर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो फिर ये जो है अदर माइक्रोब्स ओबे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल स्टीम्स, दिस लाइक काइंड ऑफ अगेन जम्प्स टू अ डिफरेंट आइडिया। तो यहाँ से अगर आप 2-4 के बाद 1 पे चले गए और उसके बाद 3 पे आओगे, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आगे बात कर सकते हो आप। तो इसलिए मेरे हिसाब से 2-4-1-3 है, उनके हिसाब से 2-4-3-1। So here again is the second question where I have a little bit of a dispute with the IMS fellows, because
they are saying it is 2431, and the reason they given is this other can come after this, but they have conveniently overlooked this कि भैया आपने ये कहा है कि दैट में इंस्पायर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जनरली जब हम किसी भी पैरा जंबल की बात करते हैं तो तो क्वेश्चन जो जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे में फ्लो होने चाहिए। तो आपने अगर 3-1 कर दिया इसको, है ना, तो अब आपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो बोल दिया, अब यहाँ पे फिजिकल एक्सट्रीम्स और ये सब आ गया, तो ये आपने आगे के लिए रूम नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लगा, और मुझे मेरे हिसाब से ये 2413, अगेन आई कुड नॉट फाइंड दिस पैसेज इन एनी आर्टिकल, जाके चेक कर लेता मैं वहाँ पे, तो बट आई फाइंड 2413 टू बी better option. Human behavior can take advantage of cultural conditions and deceive others to promote one's own interests. Okay. So if science receives cultural authority, it should surprise no one that those seeking power and profit might try to mimic it. More authority we give to science, the greater likelihood science imposters more sophisticated research tactics. Cultural anthropologists liken the process to magician's illusions. Imitators conjure science from cheap symbols and ersatz images. It is an apt and vivid label. You could just easily call them science con artists, liars, cheats, seeking our confidence using a semblance of science, predictable opportunists perhaps. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपने साइंस को जितनी आप अथॉरिटी देते चले जाओगे, उतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग आएंगे और जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाएंगे, राइट? दे विल यूज साइंस in the form of some maybe cheap symbols or something, and they will make fool of people, take them for a ride. तो इस तरह की बातें बताई गई। When science holds cultural authority, pseudo-scientists exploit it for power or profit. ठीक है, इसको रख सकते हैं। The more authority science has, the more opportunists counterfeit it to deceive others. ये भी ठीक है। Science imposters imitate the symbols and methods of science for power or profit. देखो यहाँ पे कल्चरल अथॉरिटी की बात नहीं करी है कि ये साइंस इंपोस्टर्स कब इमिटेट करते हैं सिंबल्स और कब वो ऐसा करते हैं, जब उनको अथॉरिटी हो। दैट मीन्स कल्चरल अथॉरिटी मीन्स पीपल ट्रस्ट देम, राइट? तो ये चीज नहीं लिखी है इसने, तो ये गलत है। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लॉइट्स कल्चरल अथॉरिटी एंड अट्रैक्ट फ्रॉड्स, साइंस इज जस्ट वन केस। अब यहाँ पे ये नहीं, इन जनरल नहीं है ये पैसेज सिर्फ साइंस के बारे में। दिस इज नॉट अबाउट मेनी फ्रॉड्स एंड साइंस बीइंग वन ऑफ देम, सो दिस आल्सो कैन बी एलिमिनेटेड। अब आपके पास में सिर्फ ए और बी बच गए। तो व्हेन साइंस होल्ड्स कल्चरल अथॉरिटी, सूडो साइंटिस्ट एक्सप्लॉइट इट फॉर पावर और प्रॉफिट। द मोर अथॉरिटी द मोर अपॉर्चुनिटीज। देखो दोनों में अगर हम देखें तो इसमें कल्चरल अथॉरिटी लिखा हुआ है विच इज करेक्ट, इसमें सिर्फ अथॉरिटी लिखा हुआ है। इसमें पावर और प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसमें वो नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसमें ये दिया हुआ है द मोर अथॉरिटी, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द मोर अथॉरिटी वी गिव द ग्रेटर द लाइक्लीहुड ऑफ साइंस इम्पोस्टर्स एंड मोर सोफिस्टिकेटेड। तो इसलिए ये वाला पॉइंट 1 में कैप्चर नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक दिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए बी करेक्ट कर देते हैं, ए नहीं करते ना। ए ठीक भी था, ए बी, लेकिन बी स्लाइटली बेटर, तो इसलिए इसमें बी सही है। अगेन this is again a little challenging passage. Few issues in contemporary technology policy are as contentious as the precautionary principle. तो contemporary technology policy में contentious means debatable, right? Debatable, controversial. Precautionary principle है एक। Precautionary principle क्या कहता है? The topic features prominently in political and academic debates across multiple disciplines. Originating in the International Initiatives for Environmental Protection in the 1970s, it first came to legal maturity in German environmental policy in 18. Since then, it has been championed by environmentalists and strongly resisted by some of the industries they oppose. The influence has extended from environmental regulation to wider policy making, becoming a general principle of European Community law, focus of attention on high-stake disputes. Precautionary principle जो है ये काफी प्रोमिनेंट हो गया है, और सबसे पहले ये जर्मन एनवायरमेंटल पॉलिसी में आया। उसके बाद काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने इसको सपोर्ट किया, चैंपियन किया। कई सारी इंडस्ट्रीज ने इसको अपोज किया, और इसकी जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी एक्सटेंड हो गई। तो अब है क्या ये? प्रिकॉशनरी पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन है क्या ये? वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मुलेशन ऑफ इट इज प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल 15 ऑफ 1992 Rio Declaration, where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used
एज अ रीजन फॉर पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। मतलब जहां पे भी आप अगर कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पे थ्रेट है सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज होने की, आप अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, कोई भी नई तरह की प्रोसेस लेके आ रहे हो, कुछ भी अगर आप नया कर रहे हो, सपोज आपने एक नई ड्रग का इन्वेंशन कर लिया, अब लेकिन अगर उसमें ऐसी थ्रेट है कि उससे सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज होना है, तो आपको अगर पूरी सर्टेनिटी नहीं है तो भी आप उसको जो प्रिवेंट करने के मेजर्स हैं उसको पीछे नहीं हटोगे। दैट मीन्स दीज थ्रेट्स यू विल टेक सीरियसली। दो कॉल्ड बेटर सेफ देन सॉरी, दिस एक्सप्रेशन होल्ड सिग्निफिकेंट specific implications. It hinges on the presence of a potential for irreversible harm and a lack of scientific certainty. तो दो चीजें हैं, एक तो irreversible harm हो सकता है और दूसरा साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है। इट एम्बॉडीज अ नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्मल जो होता है, जो एक नॉर्मल तरीके से जाएगा। इट एम्बॉडीज अ नॉर्मेटिव प्रिजम्पशन फेवरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ रादर देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इस तरीके का जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इसमें एक प्रिजम्पशन लिया जाएगा, मीन्स इसका जो एक प्रेमिस है वो ऐसा रहेगा कि आपको जो भी अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो उसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमंस को हार्म नहीं होना चाहिए। सो उसमें ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भले ही हार्म हो जाए। इट रेफर्स टू द रीजंस फॉर एक्शन, नॉट टू द सब्सटेंस ऑफ पॉसिबल एक्शंस। तो इसमें आपको रीजंस बताए जा रहे हैं कि क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है ये नहीं बताया जा रहा है। एंड अप्लाइज इन प्रिंसिपल सिमेट्रिकली टू ऑल टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स। तो जितने भी टेक्नोलॉजी कहीं पे भी कोई भी फील्ड हो उसमें इक्वली सिमेट्रिकली मीन्स इक्वली अप्लाई होता है। At root, the precautionary principle involves a particular normative distillation of more than a century of experience with the unexpected consequences of new knowledge and technologies. तो कोर में क्या है कि एक सदी का हमें एक्सपीरियंस हो गया, 100 साल का एक्सपीरियंस हो गया कि कई सारी नई नॉलेज और नई टेक्नोलॉजी से कितना नुकसान हुआ है। बहुत बार आ, कुछ भी जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार हो गया, राइट, तो उससे कितना अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। कोई अगर नई थेरेपी आ गई है, कोई नई मेडिसिन आ गई है, उससे कितने अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इट रिलेट्स क्लोजली टू द प्रिंसिपल्स सच एज प्रिवेंशन, पॉल्यूटर पेज एंड क्लीन प्रोडक्शन। क्लीन प्रोडक्शन मतलब अब जैसे एनवायरनमेंट, जैसे हमने एक्सटर्नैलिटीज के बारे में पता है हमको कि सपोज आपने जब हमने जो CFCs थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि एयर कंडीशनिंग होती है, तो जब उनका आविष्कार हुआ था तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मिरेकल है, कूलिंग हो जाएगी, लेकिन उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। तो ये सब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। Like them, it enriches the appreciation of duties of commercial firms and responsibility of government. It requires more explicit and rigorous attention to the implications of incomplete knowledge that is routinely provided in conventional risk assessment. So it requires more explicit and rigorous attention to the implications of incomplete knowledge than is routinely provided in conventional रिस्क असेसमेंट। तो कन्वेंशनल रिस्क असेसमेंट तो आपको जिस तरीके से जो होता है उसमें तो इनकम्प्लीट नॉलेज जो है उसको नहीं लेके चलते, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज से में जो होता है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैज बीन सब्जेक्ट टू अ वाइड एरे ऑफ क्रिटिसिज्म्स। वन कंसर्न इज दैट इट इज इल डिफाइंड। तो अभी तक तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कोई भी अगर नई चीज आ रही है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसकी अगर इनकम्प्लीट नॉलेज भी है तो हम वी विल टेक स्टेप्स विच आर बेसिकली फेवरिंग द एनवायरनमेंट और द ह्यूमन बींग्स एंड इग्नोरिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये एक इसमें बताया गया है। अब इसके कई क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं इट इज इल डिफाइंड। हाउ सीरियस इज सीरियस? सीरियस मतलब क्या है? ये कोई ऑब्जेक्टिव वो तो है नहीं। व्हाट एग्जैक्टली डज इरिवर्सिबल मीन? इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी एवर एग्जिस्ट? क्या कभी हो भी सकती है? सच कंसर्न अपीयर वैलिड इफ प्रिकॉशन इज ट्रीटेड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रूल। वो कह रहा है कि ये कंसर्न वैलिड जब हो सकते हैं जब हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव रूल माने। लेकिन लीगल स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि प्रिंसिपल सच एज प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इट इज नॉट अ डिसीजन रूल इन इट्स ओन राइट। देखो रूल नहीं है ये। इट सर्व्स एज अ जनरल गाइड टू डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ मोर डिटेल्ड कॉम्प्लीमेंटरी मेथड्स एंड प्रोसेसेस। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज जस्ट अ जनरल गाइडलाइन। तो इसलिए ये जो क्रिटिसिज्म है इसको ऐसे डिसमिस किया इन्होंने। फर्दर क्रिटिसिज्म इज दैट इनहेरेंटली नॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ प्रिकॉशन रेंडर्स इट इरैशनल। कि जो नॉर्मेटिव कैरेक्टर है किसी भी प्रिकॉशन का,
उसके कारण वो इरेशनल हो जाता है ना। तो नॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ प्रिकॉशन मीन उसका जो जिस तरीके से वो प्रिस्क्राइब कर रहा है एक बिहेवियर, नॉर्मेटिव मीन जिस तरीके से वो प्रिस्क्राइब कर रहा है नॉर्म और स्टैंडर्ड, उसके कारण ये इरेशनल हो जाता है। दिस रेस्ट ऑन द assumption that science based procedures transcend normative कंटेंट। तो इसके पीछे assumption ये है कि जो साइंस के प्रोसीजर होते हैं वो नॉर्मेटिव कंटेंट के से ऊपर परे होते हैं, yet practical application of risk assessment and cost benefit analysis require evaluative judgments in setting levels of protection and balancing harms and benefits. Moreover, extensive literature shows that such methods involve divergent framings. When analysis is acknowledged to be framed by value judgments, explicit normativity of precaution may be more rather than less rational. तो ये यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन था कि जो नॉर्मेटिव कैरेक्टर है, मतलब ये बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जो भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, उसके कारण ये इररेशनल हो जाता है, क्योंकि इनके हिसाब से जो साइंस बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो तो नॉर्मेटिव कंटेंट उसमें कंटेंट नहीं होता, वो उससे परे होते हैं, उससे ऊपर होते हैं। लेकिन अगर हम रिस्क असेसमेंट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें, तो उसमें हमें जजमेंट्स निकालने पड़ते हैं, इवैल्यूएटिव जजमेंट्स की लेवल ऑफ प्रोटेक्शन और बैलेंसिंग हार्म्स एंड बेनिफिट्स। मतलब उसमें भी हम एक तरह से जजमेंट ले रहे होते हैं, साइंटिफिक उसमें भी हम जजमेंट ले रहे होते हैं, और डाइवर्जेंट फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, मीन्स एक ही व्यू नहीं चलता है। और जो एनालिसिस है वो वैल्यू जजमेंट मीन्स कि आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हो। सपोज कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई कोई ड्रग आ रही है जिससे कि अ, हजारों लोगों की जान बच सकती है, लेकिन कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है, 100-200 लोगों को। तो अब ये वैल्यू जजमेंट है कि आप किसको फेवर करोगे, इसमें कोई सही गलत नहीं है, दिस वैल्यू जजमेंट। तो इसलिए वो कह रहे हैं जब वैल्यू जजमेंट बीच में आ गया तो जो नॉर्मेटिविटी और प्रिकॉशन है वो इसको रैशनल बनाएगी, नॉट लेस रैशनल। ये दूसरा उन्होंने डिसमिस कर दिया। रिलेटेड कंसर्न फोकसेस ऑन ओरिएंटेशन ऑफ प्रिकॉशन इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट अंडर पोजिशंस प्रायोरिटाइजिंग economic competitiveness. This presumption may appear unreasonable, yet such positions do not have a monopoly on rationality. These criticisms reflect disagreement with underlying value rather than refutation of rationality. Precaution should not be invoked to suppress deliberation, argument or dissent. तो अगला है कि जो एक ओरिएंटेशन ऑफ प्रिकॉशन, हम एनवायरनमेंट के फोकस की बात करते हैं, एनवायरनमेंट के फेवर की बात करते हैं। तो जब अगर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस की बात आई तो एनवायरनमेंट को फेवर करना तो अनरीजनेबल हो सकता है ना, क्योंकि कई चीजें अगर आपको एनवायरनमेंट को सूट करनी है तो इकोनॉमिकली दे मे बिकम अनवायबल और अनकॉम्पिटिटिव। लेकिन यही रैशनैलिटी के ऊपर इनकी मोनोपोली नहीं है। इसमें वैल्यू सिस्टम, वही वैल्यू सिस्टम वाली बात आ गई कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसे ज्यादा खर्च करना है या फिर एनवायरनमेंट को बचाना, है ना। तो इसमें रैशनैलिटी वाली बात नहीं है। और फर्दर कंसर्न इज दैट प्रिकॉशन may be used selectively to serve political or economic interests such as protecting domestic industries or blocking technologies. कई बार जो है इस तरह का प्रिकॉशन का डर दिखा के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है कि अरे ये इंपोर्ट होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो जाएगा। तो कई बार ये पॉलिटिकली भी एक्ट होता है, इसमें गेम होता है। एक्सेसिव रिलायंस में ऑल्सो डिस्करेज इनोवेशन, हाईलाइटिंग द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड बैलेंस्ड इवैल्यूएशन। तो ये पैसेज ऐसा लग रहा था कि I mean, it has been taken from a textbook about precaution, I mean, not really from an article or something. So very heavy and uh, very detailed, plus having so many paragraphs. So challenging passage. Right. Let's look at the questions. All of the following are presented as features of precautionary principle, except that it works as a general guide for making decisions, not as a strict rule that tells policymakers what to do. ये तो दिया हुआ है, ये जनरल गाइड है ये, राइट। इट इज नॉट दी रूल। तो ये कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रीजंस फॉर एक्शन नॉट द सब्सटेंस। और दूसरा ये लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे प्रिकॉशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रूल, राइट। इट इज नॉट अ डू डिसीजन रूल, इट इज जस्ट अ जनरल गाइड, यहाँ पर दिया। सो दिस इज गिवन, so this is not the answer. Clearly puts environmental and human health concerns ahead of economic considerations.
ये भी दिया हुआ है। अप्लाइज इक्वली टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और पॉलिसी चॉइसेस व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे कि इट अप्लाइज इन प्रिंसिपल सिमेट्रिकली टू ऑल टेक्नोलॉजिकल alternatives, right? So ये दिया हुआ है। तो D is the right answer. Mandates adoption of restrictive measures even when proof of risks may be missing. ऐसा नहीं बताया कि mandates adoption of restrictive measures, ये नहीं बताते कि restrictive measures क्या है, वो नहीं बताते। ये यह बताया कि वो, ये नहीं बताते, वो refers to reasons for action, not the substance of possible actions। तो ये नहीं है। D is the right answer. Which of the following best explains why the precautionary principle is described as normative? It replaces scientific uncertainty with legal binding rules and dictates regulatory outcomes। बिल्कुल गलत। Dictates legally binding ऐसा कहीं नहीं है। It derives authority mainly from ethical philosophy। ethical philosophy की कोई बात ही नहीं है। It incorporates value judgments about risks and prioritizes without justification or proof। Yes, इसको नॉर्मेटिव बताया गया है क्योंकि इसमें वैल्यू जजमेंट्स होते हैं अबाउट रिस्क एंड प्रायोरिटीज विदाउट जस्टिफिकेशन और प्रूफ। तो ये रख सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स political preferences that conflict with the standards used in conventional risk assessment। ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्या दिया हुआ है, एक मिनट। इट रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टैंडर्ड्स, नहीं। ये दिया हुआ है rigorous attention to implications of incomplete knowledge that than is routinely provided in conventional risks assessment। तो नॉर्मेटिव यहाँ से नहीं दिया गया। नॉर्मेटिव क्यों बोला गया, ये यहाँ पे है। फ्यूचर क्रिटिसिज्म इज द इनहेरेंटली नॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ प्रिकॉशन। ये अलग बात हो रही थी यहाँ पे, ये अलग बात हो रही है, इसलिए इसमें दिस इज रॉन्ग। सी इज द राइट आंसर। Which of the following, if false, would contradict the argument? So this difficult questions, no? These are all difficult questions. Which of the following will contradict the argument that inherently normative character of precaution renders it irrational? ये लिखा हो ना यहाँ पे कि inherently normative character of precaution renders it irrational। When scientific methods are used correctly, they can completely remove personal values and bias from decisions। गलत। Moral principles are considered reasonable only when they match current economic priorities। Even methods that are seen objective in policy making still involve value judgments। Yes, ये अगर false है तो ये contradict करेगा। Correct। कि जो क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू है, राइट, और उसको फॉल्स कर दिया तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इसको। इसलिए सी इज द राइट आंसर। यूजिंग प्रिकॉशन वर्क्स बेटर देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन प्रिवेंटिंग हार्म। अगेन दिस वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। Which of the policy responses would the author be most likely to criticize the misuse of precautionary principle? Withdrawing an already prescribed school textbook because its long-term cultural impact is uncertain, while discouraging academic rebuttal or review। तो ये तो गलत है। This is what is going to be criticized। Imposing temporary limits on the use of a new pesticide will environmental effect remain uncertain while comparing its risk with those of its. Yes, this is not a misuse. So this is not the answer. Assessing the uncertain consequence of deploying a new energy technology alongside the uncertain environmental cost of maintaining current fossil fuel system, ये भी ठीक है। Publicly acknowledge that about an uncertain genetically modified crop involves value judgments or disagreements over acceptable levels, ये भी ठीक है। तो A is the right answer। Okay, fourth passage. In Victorian Britain, the courtroom became an unlikely arena for some of the era's deepest debates। Victorian era means Queen Victoria। Queen Victoria जो थी वो around 1800s में थी वो ब्रिटेन में। Debates about human mind. Criminal trials involving pleas of insanity did not merely determine guilt or innocence. They exposed unresolved tensions between law, medicine, and morality at the moment, and all three were undergoing profound transformation। तो ये पैसेज बता रहा है कि जब क्रिमिनल ट्रायल्स होती हैं, तो सपोज किसी ने मर्डर कर दिया, तो अब मर्डर उसने कर दिया और वो कहता है कि मैं तो, या फिर उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है कि ये तो इंसेन है,
तो क्या उसको सजा मिलेगी? तो ये पर्टिकुलर पैसेज का थीम है दैट वेदर अ क्रिमिनल who has done some crime and has portrayed himself or herself as mentally insane, तो कौन उसमें डिसाइड करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि नहीं है, वेदर इट इज अ लीगल इशू और इट इज अ मेडिकल इशू और इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। तो ये सारी चीजें जो थी उनके बीच में टसल होती थी कि प्लीज ऑफ इंसेनिटी, है ना, कि अगर वो इंसेनिटी प्ली कर रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने मार दिया तो मुझे छोड़ दो, तो इससे उसकी गिल्ट और इनोसेंस नहीं डिटरमिन होती, बल्कि टेंशन रिवील हुए लॉ, मेडिसिन और मोरालिटी में। और तीनों में काफी प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इन ट्रायल बाय मेडिसिन, हिस्टोरियन रॉजर स्मिथ traced how legal insanity emerged not only as a purely legal doctrine but as a contested social construct shaped by professional ambition, cultural anxieties and evolving ideas about responsibility। तो जो लीगल इंसैनिटी थी उसका कैसा एवोल्यूशन हुआ कि ये प्योरली लीगल डॉक्ट्रिन नहीं थी, बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट, मींस कि लोगों ने जो उसको एक शेप दिया या जो उसके बारे में डिसाइड किया, सोशल, दैट मीन्स डिफरेंट उसमें लोग थे, प्रोफेशनल एम्बिशन उनकी अलग अलग थी, कल्चरल एंग्जाइटी थी और सबके आइडिया अलग अलग, तो इस हिसाब से एक सोशल कंस्ट्रक्ट बना। ये कोई लीगल डॉक्ट्रिन नहीं था, दैट मीन्स कि ये सब ब्लैक और वाइट नहीं था, राइट। लीगल इंसेंटिव जो था वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट था। द 19th century was marked by institutional reform and growing confidence in scientific expertise. Psychiatry, then known as early Athenianism, sought professional legitimacy while the legal system attempted to preserve notions of rational agency essential to criminal responsibility। अब देखो कैसे भी दोनों के बीच में टसल हो रही है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो रहा था और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था साइंटिफिक एक्सपर्टीज में। साइकेट्री जो थी उसको लेजिटिमेसी सीख कर रही थी वो, मतलब कि साइकेट्री वाज अ ब्रांच दैट वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इट्स लेजिटिमेसी, कि भाई मैं एक बहुत ही एक लेजिटिमेट ब्रांच हूँ और मेरी बात मानी जानी चाहिए। लीगल सिस्टम जो था वो प्रिजर्व करने की कोशिश करता था रैशनल एजेंसी, मीन्स कि भाई ये रैशनल माइंड है इसका, इसने सोच समझ के किया जो भी किया है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए। दैट मीन्स कि जो भी आदमी खुद कुछ भी कर रहा है वो एक उसकी इच्छा से कर रहा है खुद की, और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। These ambitions collided most visibly in trials where defendants claimed insanity. Such cases became public spectacles, reported widely in the press, and transformed courtroom into stages where rival explanations of human behavior, medical determinism, and legal voluntarism were forced into an uneasy dialogue। तो ये बता रहा है कि ऐसे जो केसेस थे जहाँ पे कि लीगल इंसेनिटी क्लेम कर ली है डिफेंडेंट ने, किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया, वो कहता है मैं तो पागल हूँ, तो ऐसे केसेस जो थे वो काफी फेमस हुए वहां पे। और कोर्ट रूम जो है वो एक तरह से स्टेज बन गया जहाँ पे कि ह्यूमन बिहेवियर के राइवल एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे थे। एक था मेडिकल डिटर्मिनिज्म। मेडिकल डिटर्मिनिज्म मीन्स कि जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो भी इसकी इंसेनिटी है इट इज बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन। दैट मीन्स उसका जो बिहेवियर है वो मेडिकली डिटर्मिंड है, वो उसने अपनी इच्छा से नहीं किया। लीगल वॉल्यूंटरिज्म, दूसरी तरफ लॉयर्स जो थे वो कहते थे कि नहीं, इसने जो भी किया वॉल्यूंटरली किया है, मतलब अपनी इच्छा से किया है, ही नोज व्हाट ही वाज डूइंग। और जो डॉक्टर थे वो कहते थे नहीं, इसकी जो कंडीशन है वो इसकी डिजीज के कारण है, मेंटल स्टेटस के कारण है, स्टेज मेंटल स्टेट के कारण है। तो इनके बीच में टसल होती थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर है किसकी। ऑब्वियसली लीगल वाले जो लोग, लॉ वाले लोग हैं, वो कहते थे कि इसने अपने पूरे होशो हवास में किया है, और ये कहते थे नहीं, तो डॉक्टर्स। तो इस तरह से एक टसल चलती रहती थी। At the center of this history stands the 1843 case of Daniel Manhattan, whose attempted assassination of British Prime Minister led to the formulation of Manhattan Rules। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की एक इंसान ने, डैनियल ने, और एक मैनहट्टन रूल्स आ गए उसके बाद में। These rules defined legal insanity in narrowly cognitive terms, asking whether a defendant knew the nature of the act or understood that it was wrong। तो अब इसको एक बहुत ही नैरो टर्म्स में डिफाइन कर दिया गया। तो सपोज करो कि ये डैनियल ने इसको मारने की कोशिश की, तो उससे पूछा गया कि यार, और उसने कहा कि मैं तो इनसेन हूँ, लीगली इनसेन हूँ। तो उसको बोला भले ही आप लीगली इनसेन हो, लेकिन आपको पता था कि आप क्या करने वाले हो, और क्या आपको पता था कि आप गलत करने वाले हो? अगर आपको ये दो चीजें पता है कि हाँ आपने क्या करने वाले हो आप, और दूसरा आपको पता है कि ये गलत है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे आप फिर मेंटली इंसेन हो या नहीं हो। ये चीज समझ में आनी चाहिए। While enormously influential, persisting in many common law jurisdictions for nearly 2 centuries, the rules also hardened the boundary between legal and medical authority. Psychiatry could describe mental disturbance, but the law reserved the final judgment on responsibility।
तो साइकेट्री जो थी वो डिस्क्राइब कर सकती थी मेंटल डिस्टर्बेंस कि हाँ भाई ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, लेकिन लॉ जो था वो फाइनल उसका जो कॉल था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि वो दो क्वेश्चन पूछता था कि क्या आपको पता है आपने क्या किया, और आपको पता है कि ये गलत था। अगर ये दो चीजों के आंसर यस है तो भले ही उसको साइकेट्री ने पागल करार दिया हुआ, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती, राइट। तो दिस वाज द मैकनाटन रूल्स, मैनहट्टन, whatever you want to say. Smith showed that aftermath of Manhattan did not bring clarity but prolonged uncertainty. तो ऐसा नहीं कि इन रूल्स के आने के बाद क्लैरिटी होगी। Medical experts disagreed sharply among themselves, divided by institutional loyalties and competing theories of mind. तो अब ना तो एक तरफ तो मेडिकल और लीगल, इसके बीच में जो थी वो जो डिफरेंसेस थे, कंट्रोवर्सी थी, अब मेडिकल मेडिकल में भी होने लगी। मेडिकल आपस में ही जो थे वो डिसएग्री होने लगे। जिनकी लॉयल्टी एक तरफ थी वो दूसरी तरह की बातें करने लगे। थ्योरीज ऑफ माइंड भी कंपीटिंग लाने लगे। प्रिजन डॉक्टर्स, असाइलम सुपरिंटेंडेंट्स एंड कोर्ट रूम स्पेशलिस्ट ऑफर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग टेस्टिमनी। तो डॉक्टर अलग टेस्टिमनी देता है, ये अलग देता, ऑफन ब्लेंडिंग स्पेकुलेशन विद क्लेम्स टू साइंटिफिक रिगर। और कई बार वो अंदाजे भी लगाते थे और कहते थे कि हम तो साइंटिफिकली रिगरस। These disputes reflected deeper philosophical uncertainties about free will, reason, and moral culpability, as well as struggles for authority over who could legitimately speak about madness. तो यहाँ पे अब ये एक और नया इशू खड़ा हो गया कि कौन है जो अथॉरिटेटिवली बोल सकता है और जिसकी बात मानी जाएगी कि जो भी उसका बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या वो प्रिजन का डॉक्टर है या असाइलम सुपरिंटेंडेंट है या कोर्ट रूम स्पेशलिस्ट, कौन है। Crucially, Smith situated these debates within their broader social context. Class and gender shaped how insanity was perceived and adjudicated. तो इस पे क्लास और जेंडर का भी एक इम्पैक्ट था कि इंसेनिटी को कैसे देखा जाता था। फीमेल डिफेंडेंट्स, particularly in case of infanticide, were often judged through lenses of domesticity, sexuality and poverty. तो जैसे फीमेल डिफेंडेंट थी, अगर वो इन्फेंटिसाइड कर देती थी, मतलब अपने बच्चों को ही मार दिया उन्होंने या किसी को मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको सजा दी ही दी जाएगी, उसको भी अलग अलग तरीके से देखा जाता था कि डोमेस्टिसिटी उसकी, सेक्सुअलिटी उसकी और पॉवर्टी, कि वो गरीब है क्या है, बच्चे को मार दिया, बच्चा नहीं पढ़ रहा, गरीब है तो मार दिया, तो क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ये सब चीजें होती। अदर कंडीशन, इंटॉक्सिकेशन, क्या पिए हुए है, एपिलेप्सी, स्लीप वॉकिंग, क्या फर्दर ब्लड द लाइन बिटवीन इलनेस एंड वाइस। तो अगर आपने पी के किसी को मार दिया, या एपिलेप्सी मीन्स जो एक मिर्गी आ जाती है उसके दौरान आपसे कोई किसी को मर गया, या स्लीप वॉकिंग में, तो क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, नहीं है। इन दिस वे इंसेनिटी ट्रायम्फ बिकेम मिरर्स ऑफ विक्टोरियन मॉडल ऑर्डर, रिवीलिंग फियर्स अबाउट degeneration, deviance, and social control. The persistence of these tensions was made clear in 20th century. Acquittal of John Hinckley Jr. in 1981 reignited public outrage and renewed calls for reform. अब ये जो जॉन हिंकले जूनियर था, इसने रोनाल्ड रीगन को मारने की कोशिश की थी। ये इस पैसे में नहीं बताया, जो कि इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए था। रोनाल्ड रीगन वॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये जो जॉन हिंकले जूनियर है, इसने उसको मारने की कोशिश की थी, तो उसको फिर इंसेनिटी के ग्राउंड पे उसको छोड़ दिया गया। तो उससे फिर पब्लिक आउटरीच हो गया और रिन्यूड कॉल्स फॉर रिफॉर्म, और फिर रिफॉर्म की कॉल्स होने लगी, इकोइंग पैटर्न्स विद इंडिकेट आइडेंटिफाइड सेंचुरी अर्लियर। तो 100 साल पहले भी वही होता था विक्टोरियन एरा में, और अभी भी यही हो रहा है। एक्सपर्ट डिसएग्रीमेंट, लीगल एक्विटल एंड पॉलिटिकल बैकलैश। Despite repeated reviews and criticism, the insanity defense remains tethered to the 19th century concept. तो बहुत रिव्यूज और क्रिटिसिज्म के बाद भी जो इंसेनिटी डिफेंस है वो अभी भी पुराने 19th सेंचुरी कॉन्सेप्ट के साथ ही बंधा हुआ है, टेथर्ड भी बंधा हुआ है। Smith's work ultimately suggests that conflict between law and psychiatry is not accidental but structural. वो कहता है कि जो लॉ एंड साइकेट्री के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्ट्रक्चरल है, मींस ये जो जिस तरीके से, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। स्ट्रक्चरल है मतलब कि ये ऐसा ही बना हुआ है, क्योंकि लॉयर्स हैं, लीगल साइड एक तरफ है, मेडिकल साइड एक तरफ है, उन्हें सबको अपना अपना दिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई गलत कर रहा है या कोई जान करके है, ये ऐसा ही होगा। लीगल स्टैंडर्ड सीक क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, मेडिकल नॉलेज इवॉल्व्स एंड रेजिस्ट फिक्स बाउंड्रीज। तो ये एक लीगल स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं। ट्रायल बाय मेडिसिन एंड्योर्स बिकॉज इट शोज हाउ क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी हैज ऑलवेज बीन नेगोशिएटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, कल्चर एंड पावर, एंड व्हाई दैट नेगोशिएशन रिमेन्स अनफिनिश्ड। और ये अभी भी वैसा का वैसे ही चलता चला जाता है, राइट। सो दिस पैसेज इज अबाउट हाउ लीगल इंसैनिटी was treated, or rather not treated, but how the defendants who claimed legal insanity, uh, what were what governed, whether they were finally acquitted or whether they were implicated for doing a crime. तो उसमें बताया गया है कि मेडिकल
और लीगल में टसल होती थी। मेडिकल वाले ने तो उसको इंसेन करार दे दिया, लेकिन लीगल कहता था कि इसको अगर 2 क्वेश्चन का जवाब देता है ये कि हाँ इसको पता है कि इसने गलत किया, भले ही पागल हो तो इसको सजा मिलनी चाहिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैकनाटन रूल्स आए, और फिर उसके बाद में उससे भी क्लैरिटी नहीं हुई, और सिचुएशन जो थी वो इनफैक्ट देवर डिफरेंट फैक्टर्स विच वर गवर्निंग दिस, क्लास और जेंडर से भी अफेक्ट होता था ये, और अभी भी ये अनफिनिश्ड ही है। Which of the following did not add to the uncertainty about judging insanity after the M. Nathan case? Did not add to the uncertainty about judging insanity. तो M. Nathan केस के बाद में ये यहाँ पे बताया हुआ है ना, कि ये मेडिकल एक्सपर्ट्स डिसएग्री करते थे, डिवाइडेड होते थे और इस तरह की चीजें चलती थी। कॉम्पीटिंग थ्योरीज ऑफ माइंड एंड इंस्टीट्यूशनल राइवलरीज, तो ये तो था, दिस एडेड टू द अनसर्टेनिटी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज एंड मेडिकल साइंस, ये भी था। सोशल बायसेस रिलेटेड टू क्लास जेंडर मोरालिटी, ये भी था। करेक्ट आंसर इज बी, कॉजेज एंड डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस। देखो पूरे पैसेज में ये नहीं बताया कि वो मेंटल इलनेस उसको कैसे है, उसका डायग्नोसिस कैसे हुआ, क्यों हुई वो उसको, वो नहीं है। उसको बस मेंटल इलनेस को लिया गया है कि अगर किसी ने क्लेम करी है मेंटल इलनेस तो उसको कौन सर्टिफाई कर रहा है, और फिर उसके बेसिस पे कैसे आगे डिसीजन लिया जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। सो बी करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे बी इन्फर्ड फ्रॉम पैसेज अबाउट इंसैनिटी ट्रायल्स एक्सेप्ट लॉज कुड लॉ कुड नो लॉन्गर रिटेन फाइनल कंट्रोल ओवर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो यही पे यही मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ की थी, है ना। आ, ये लिखा है लॉ रिजर्व द फाइनल जजमेंट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइकियाट्री कुड डिस्क्राइब बट लॉ रिजर्व द फाइनल जजमेंट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लॉ कुड नॉट रिटेन फाइनल कंट्रोल ओवर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। क्लास एंड जेंडर इन्फ्लुएंस्ड इंसैनिटी, ये तो बताया हुआ है। लीगल इंसैनिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट शेप बाय पावर एंड कल्चर, ये भी दिखा हुआ है कि इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इज अ contested social construct shaped by professional ambition and all this, तो दिया हुआ है। साइकेट्री सॉट अथॉरिटी बस फेस रेजिस्टेंस, ये भी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज ए, लॉ कुड नो लॉन्गर रिटेन, ये बिल्कुल गलत है। सो लिटिल इजी क्वेश्चन, दिस वाज द moderate passage most strongly supports the view that criminal responsibility is shaped by process shaped by compromise between law, medicine and social beliefs. Looks like okay. Defeat of psychiatry, defeat वगैरह की कोई बात नहीं हो। Clear definition of mental illness through better medical, firm legal rules that protect criminal law from social, बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर ए है, प्रोसेस शेप्ड बाय कॉम्प्रोमाइज बिटवीन लॉ, मेडिसिन, सोशल। तो इन तीनों के कॉम्प्रोमाइज से ही क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे, तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पैसेज रेफर्स टू लीगल सैनिटी एज इंसैनिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो सोशल कंस्ट्रक्ट का जो ऑपोजिट होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे जेंडर बोलते हैं कि जेंडर वेदर इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट और बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ना, इसके ऊपर काफी डिबेट होते हैं कि जैसे हमने देखा होगा ट्रांसजेंडर, तो जो लोग अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं, दे आर बॉर्न वुमन बट दे फील दैट वी आर मेन, तो चेंज हो जाते हैं, या मेन को रिवर्स हो जाता है। तो जेंडर क्या सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, या मिक्स है ना। तो सोशल कंस्ट्रक्ट का उल्टा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, विच मीन्स वेरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव। तो लीगल कंसेप्ट अगेन इज अगेन लाइक अ सोशल कंस्ट्रक्ट, राइट। तो लीगल कंसेप्ट नहीं है। रूल दैट रिफ्लेक्ट कॉमन वरीज, आइडिया हुज मीनिंग चेंजेस, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल कंडीशन रिक्वायरिंग मेडिकल केयर एक्सेप्टेड बाय लॉ एंड सोसाइटी, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा कि जो बायोलॉजिकल कंडीशन जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लॉ और सोसाइटी, है ना, वो एक ऑपोजिट हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्ट। तो डी वजह राइट। ओके, ऑड वन आउट। सो लेट मी टेल यू बोथ ऑफ दीज ऑड वन आउट्स जो भी उन्होंने आंसर दिए हैं, आई डोंट एग्री, दीज आर वेरी वेरी इलॉजिकल क्वेश्चंस बोथ ऑफ देम। ओके, तो आई टेल यू व्हाट माय व्यू इज। सो
you start with 4. Joseph Weizenbaum, right? This is the full name. So Weizenbaum, to his surprise. Disturbed, right? Weizenbaum, his legacy. So start to 4 से ही होगा. Joseph Weizenbaum created the chatbot Eliza in 1960 not to simulate therapy convincingly, but to demonstrate how simple language rules could mimic conversation. To his surprise, many users quickly attributed human understanding to the program, revealing what later became known as Eliza effect, the tendency to project empathy onto machines. Disturbed by how easily people trusted a script that merely rearranged their own words, Weizenbaum turned into one of the earliest critics, warning that computers might overstep roles requiring human judgment and wisdom. His legacy lies not only in inventing first chatbot but urging society to question whether technology should always define what. So ये इसने warning दी है, right? कि computers might overstep. So basically, first sentence tells you that Joseph Weizenbaum ने create किया chatbot, right? Not to simulate therapy, but कि simple language रूप से कैसे conversation mimic हो सकती है. और many users attributed human understanding. तो कितनी आसानी से ये हो गया, तो उसने कहा यार ये तो डेंजरस है, वार्निंग दे दी उसने. और उसकी लेगेसी जो है सिर्फ उसके इन्वेंट में ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी को क्वेश्चन करने में भी है. तो 4235 एक पैराग्राफ बन जाता है. और 1 जो है कि when Weizenbaum, then a professor at MIT, wrote code that could mimic human language, his goal was to demonstrate technical capacity, not to illuminate human reaction. तो इसमें एक तो then a professor, in fact this kind of language ये यहाँ पे आनी चाहिए. Joseph Weizenbaum, then a professor at MIT. तो ये when Weizenbaum अगर दे दिया इसने, तो या तो आप 4 को निकालो. देखो इन्होंने, so as per me 1 was the correct answer as per the IMS explanation. The correct answer given was I think it was 3 as far as I remember. It was 3 or something. तो मुझे तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था कि जोसेफ वाइजनबॉम क्रिएटेड द चैटबॉट वाइजनबॉम देन अ प्रोफेसर. उन्होंने 4 के बाद 1 पे चले गए. तो आपने एक बार जब जोसेफ वाइजनबॉम बता दिया, तो फिर देन अ प्रोफेसर यहाँ पे बोलोगे ना, यहाँ नहीं बोलोगे. तो मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया था. तो मेरे हिसाब से 1 इज द करेक्ट आंसर. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. इसको आपको एग्जाम में क्विकली करना है, जो भी मिले वो मार्क करो, अदरवाइज लंबे लंबे सेंटेंसेस एक जैसे हैं तो डिफिकल्टी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगेन सेम थिंग हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे भी मैं इसको 4 से शुरू करता हूँ. इन 1926 historian Carter launched Negro History Week to challenge the widespread belief that black people had contributed little to history and to encourage communities to study and celebrate their past. तो ऐसा करके उन्होंने एक नीग्रो हिस्ट्री वीक स्टार्ट किया. Having grown up in Jim Crow South, ये Jim Crow laws होते हैं इनसे related, with limited access to formal schooling, Woodrow believed that historical knowledge was essential to dignity and collective identity. Right? तो ये यहीं से linked है. Encourage communities to study and celebrate, and he believed that it was essential. तो 4 के बाद 2 पे जा सकते हैं. He believed that if he didn't document the chronicles of black people and people from Africa, if he didn't write this record, black people wouldn't be acknowledged with their humanity. He built institutions, journals, and publishing networks to preserve African scholarship, insisting history should serve ordinary people as much as academics. 4231 एक तरह से पैराग्राफ बन सकता है. और 5 जो है, सॉरी 4 माय मिस्टेक. 4 के बाद 2, सॉरी 4 के बाद मैं आई थिंक 1 इज बेटर. माय मिस्टेक. He believed historical knowledge was essential in dignity and collective identity. He built institutions, journals, and publishing networks to preserve African American scholarship, insisting history should serve ordinary people. And then over time, his week-long observance expanded into Black History Month, 4215. And 3, I think 3. So my mistake, I was 3 ko pehle, I was a little confused. So he believed that if he didn't document the chronicles, if he didn't write this record, black people wouldn't be acknowledged for this humanity. This is the odd one out. 4215. Again, very difficult question. उन्होंने इसका आंसर 2 दे रखा है कि having grown up in this. So I don't know. Let's move over. Let's forget about these 2. Very illogical, both of these. This was still better. This was
bad question, should not have been included here. Okay, the adjective, as critic explains, although derived from a noun, the word, तो fourth से start होगा. In the 20th century decade, third decade, Kafkaesque has come to signify more than mere stylistic resemblance to the work of Franz Kafka. So Franz Kafka was a famous writer. तो Kafkaesque बहुत बार आता है. तो Kafkaesque is not like there's got a deeper meaning in it. Pervasive sensibility rooted in disorientation, futility, and oppressive impersonal forces. ये सब चीजें denote करता है. As critic Frederick R. Carl explains, Kafkaesque describes a surreal condition in which one's habitual structures of meaning and control collapse, compelling a desperate struggle against incomprehensible powers that ultimately render is futile. तो आपको कोई अगर इस तरह का ऑपरेस कर रहा है, ऐसी पावर है जिसके अगेंस्ट आप रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो उस टाइम पे फीलिंग होगी जहाँ पे आपका कंट्रोल कोलैप्स हो गया, उस तरह की सिचुएशन को, कंडीशन को काफ्काएस्क बोलते हैं. Although derived from a non-Anglophone writer, the word first appeared in British magazines, and its contemporary resurgence demonstrates its enduring and expanding resonance in English-speaking world. Adjectives casual overuse to describe everyday inconveniences trivializes and dilutes its profound existential weight. इसको जिस तरीके से लोग यूज करते हैं बहुत ही लाइटली माइनर चीजों के लिए भी, एवरीडे इनकन्वीनियंस के लिए, वो गलत है. वो उसको ट्रिविलाइज करता है. तो यहाँ पे देखो एक ऐसा बन सकता था, तो अगर हम पहले 4 से फिर 3 पे चले गए ना, ऑल्दो डिराइव फ्रॉम दिस, फिर उसके बाद में 2 और 1 अगर हम लाते तो वो सेंस नहीं बनता है ना, क्योंकि 1 और 3, 3 और 1 एक तरह से मैंडेटरी पेयर है, क्योंकि 3 में कह रहा है ऑल्दो डिराइव फ्रॉम दिस वर्ड फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस एंड डेमोन्स्ट्रेट्स एंड्यूरिंग एंड एक्सपैंडिंग रेजोनेंस इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. तो ये उसके यूसेज के ऊपर बात कर रहा है और उसी चीज को आगे कैजुअल ओवर यूज है ना. तो 3 और 1 है, तो इसलिए 4 के बाद 2 ही लगाना पड़ेगा, 3. So this is okay. This is as per what they've also mentioned. I agree with this. Okay, here there was a little bit of a doubt between two options. 14-year-old Miles Wu has adapted the traditional origami design fold collapsible shelters. His project earned it too early for this. Inspired by natural disasters, Wu explored whether geometric folding patterns could produce structures that are sturdy, affordable, and easy to deploy. Also early using computer aided. अभी ये उसी को describe कर रहे हैं कि ये करा क्या इसने. He conducted 108 strengths of 54 folded models made from this. To his surprise, the strongest version held more than 10,000 times its own weight. अब ये यहाँ पे आ सकता था. His project earned £25,000 dollar prize at the Thermo. While scaling this requires further engineering, experts praised Wu's innovative application of origami principles to structural design. His project earned the 25,000 top prize. तो ये 4th में स्लाइटली बेटर है, 3rd में आ सकता था, बट अभी उसकी प्रशंसा चालू है 4th में. यहाँ तक तो क्या कर सकता है ये बताया. फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया कि उसको एक्सपर्ट्स ने प्रेज किया, तो फिर उसके बाद अवार्ड मिला, तो उसको ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा. तो 4th आई थिंक इज अ बेटर प्लेस फॉर दिस एंड दैट्स इट. Okay, so that brings us to the end. So my final verdict, very uncharacteristic of actual CAT VARC. Okay, कोई भी पैसेज इसमें से ऐसा नहीं था जो कि इंटरेस्टिंग हो. पहला पैसेज थोड़ा सा ठीक था, मे बी विक्टोरिया ब्रिटेन वाला थोड़ा सा होगा, लेकिन नो पैसेज वाज वेरी एंजॉयबल. पैसेजेस वर लॉन्ग, दे हैड टू मेनी पैराग्राफ्स, 6 7 पैराग्राफ. जनरली आप कैट के पैसेज देखेंगे 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं, अगर ज्यादा होते भी हैं तो बड़े छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं इन जनरल. ओके, सो लंबे लंबे पैसेजेस, लंबे लंबे और बड़े वेग एब्स्ट्रैक्ट से पैसेजेस. क्वेश्चन हालांकि मुश्किल नहीं थे उनमें, अगर देखा जाए तो एक एक अगर छोड़ दिया जाए सभी में से एक एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, बाकी इतने नहीं थे. बट VA was quite atrocious VA. I have not seen this kind of VA for a long time. CL of course also makes atrocious VA at times, but कहीं तो कुछ लॉजिक हो, कहीं तो कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ हो, कुछ भी नहीं है. एंड 4 एज पर द लास्ट काउंट, चार इनके क्वेश्चन VA के मुझे एग्री नहीं हो रहे. एंड that's pretty 50% of 8 VA questions. So VA was not at all a good VA section. So I hope they improve the next time, make it better. And meantime, if you want to
join my course, or if you want to have a word about your VRC preparation, give a call or drop in a WhatsApp message or visit the website, see what all is available. If you want to take the mock, so we are starting a new mock series. There are already 40 sectional mocks available in 2 test series, and third one will be starting very soon. So there'll be in all 60 mocks for you to do, plus personalized mentoring. So if you want to join the course, drop in message, call, or visit the site. Thank you so much. I hope this was useful for you.